How are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is interaction in our environment. Our environment consists of both living and non-living things. The living things consist of animals, plants, microscopic organisms and human beings. Water, air, rocks, land, sun, etc. are non-living things. Both living and non-living things interact with each other and are called an ecosystem. All living things need air, water, sun, soil, etc. for their survival. All living things in nature need each other for their survival. This relationship between living and non-living things is called interaction. तो बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें होती हैं. इंसान, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं. वाटर, रॉक या सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. पर ये इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि सभी लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसे हम इंटरैक्शन बोलते हैं. आवर इकोसिस्टम consists of a unit of different parts that work together. An ecosystem can be a desert, a forest, an ocean or a pond. तो बच्चों, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हमें डिफरेंट पार्ट की चीज़ें साथ में काम करती दिखाई देती हैं, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन या फिर पॉन्ड. डेजर्ट, पॉन्ड, फॉरेस्ट. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें डेजर्ट, पॉन्ड एंड फॉरेस्ट की पिक्चर दी हुई है. डिफरेंट इकोसिस्टम्स. देयर आर हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स विद इन ईच इकोसिस्टम. अ हैबिटेट इज द प्लेस वेयर अ पॉपुलेशन लिव्स. अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स of the same kind living in the same place. A several type of populations may share a habitat. All necessary things like food, water, temperature, etc. are available in a good habitat. Take the example of a small pond. Several aquatic creatures may coexist at the same time. Different populations interact and form a community. A community of living things interacts with the non-living world around it to form an ecosystem. तो बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट होते हैं हर एक इकोसिस्टम में. हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहती है. पॉपुलेशन एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो सेम काइंड के होते हैं एंड सेम जगह पर रहते हैं. बहुत सारे टाइप की पॉपुलेशन एक सिंगल हैबिटेट में रह सकती है. सभी नेसेसरी थिंग्स जैसे कि फूड, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा अवेलेबल होता है एक अच्छे हैबिटेट में. अगर हम स्मॉल पॉन्ड का एग्जांपल लें और एक्वेटिक क्रिएचर्स का, तो वो साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरैक्ट करती हैं फ्रॉम अ कम्युनिटी. अ कम्युनिटी of living things interacts with non-living things. मतलब सभी कम्युनिटी में जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरैक्ट करती है और उससे ही हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है. फूड चेन. फूड चेन इज who eats whom chain. All living things need energy to survive. The sun is the ultimate source of energy in an ecosystem. Energy flows from the sun in the form of sunlight. The living parts of an ecosystem are divided into 4 groups: producers, consumers, scavengers and decomposers. Food chain. तो बच्चों, अगर हम फूड चेन की बात करें तो वो एक ऐसी चेन है जिसका मतलब है कि कौन किसको खाएगा. अब हम सभी जानते हैं कि एनर्जी के लिए हमें फूड की ज़रूरत है, इसीलिए एक फूड चेन बनाई गई है जिसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स
fall under the category of producers. They make their own food with the help of non-living matter like sunlight, gases, soil, water, minerals. So, they are called producers. The green plants start the food chain, which is essential for an ecosystem. The process by which green plants make food is called photosynthesis. They provide energy for the ecosystem. All organisms in the food chain get energy from plants either by directly eating them or by eating plant eaters. Basic photosynthesis: light energy, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। तो बच्चों, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में आते हैं। ये अपना खुद का खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये लोग सनलाइट, गैसेस, मिनरल्स, वाटर एंड सॉइल के यूज़ से अपना खाना बनाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स फूड चेन में सभी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने काम करने के लिए। Consumers: humans and animals fall under the category of consumers because they cannot make their own food. They depend on plants for their food. Consumers are broadly divided into three groups: herbivorous, carnivorous and omnivorous. तो बच्चों, जो humans and animals होते हैं वो कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए ये प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। यदि हम बात करें कंज्यूमर्स की तो उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। फैक्ट टू नो: प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। बच्चों, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। हर्बिवोरस: animals which get their food directly from plants and plant products only are called herbivorous. They are also called primary consumers. Their digestive systems are special because they help them digest all kinds of plants including grass. Cow, buffalo, goat, elephant, zebra, giraffe, horse, deer, rabbit, etc. are examples of herbivore. तो बच्चों, herbivores ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने खाने के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। वो सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। काउज, बफेलोज, गोट्स, एलिफेंट एक्सेट्रा हमारे हर्बिवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। डियर, बफेलो, cow, rabbit. Carnivorous: animals which kill other animals and eat their flesh are called carnivorous. They are also called secondary consumers. Lion, tiger, jackal, etc. are examples of carnivorous animals. तो बच्चों, carnivorous animals वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनकी फ्लैश खाते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। लायन, टाइगर एंड जैकल कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल्स हैं। ओमनिवोरस: एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. ह्यूमन्स, बेयर, डॉग, क्रो, कैट, रैट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोरस. तो बच्चों, जो एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। ह्यूमन्स, डॉग, क्रो, कैट एक्सेट्रा सब ओमनिवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। बियर, डॉग, कैट, रैट. Scavengers: some animals who help in keeping the environment clean by eating the flesh of dead animals. Such type of animals are called scavengers. Vulture, hyena, crow, jackal, etc. are examples of scavengers. तो बच्चों, कुछ एनिमल्स
मरे हुए एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहता है। उन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वल्चर, क्रो एंड जैकल। Decomposers. Decomposers are tiny organisms, microorganisms that feed on dead plants and animals and reduce their remains to minerals. They break down, decompose the dead parts of the plants into minerals which get mixed in the soil. These minerals form part of food for plants which they take through their roots. Earthworm. So, plants also depend on decomposers for their food. Minerals. Thus, decomposers are necessary for an ecosystem. Bacteria, fungi, etc. are examples of decomposers. These are microscopic organisms. Earthworms are also decomposers. They can break down only plants. They make the soil fertile, so they are called friends of farmers. तो बच्चों, अगर हम decomposers की बात करें तो ये वो tiny organisms होते हैं जो कि dead plants and animals को खा लेते हैं और उसमें से जो remaining minerals होता है उन्हें extract कर लेते हैं, जो कि soil में mix होके plants तक mineral पहुंचाने में help करते हैं। इसीलिए plants decomposers पे डिपेंडेंट होते हैं अपने मिनरल्स के लिए। बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अर्थवॉर्म्स भी डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ब्रेक डाउन करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इन्हें हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं। बैलेंस इन द इकोसिस्टम. अ बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स is very important for an environment. When animals and plants live together in balance for a long time, ecosystem becomes stable. If there is a disturbance, the plants and animals can die. The existing harmony will be upset and the entire system will change. Then the ecosystem becomes unstable. तो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इकोसिस्टम में एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि तभी हमारा इकोसिस्टम स्टेबल कहलाएगा। यदि एनिमल्स कम हो जाए और प्लांट्स ज़्यादा, या फिर प्लांट्स ज़्यादा हो जाए और एनिमल्स कम, तो हमारा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। फैक्ट टू नो अबाउट मोर देन 1000 एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज आर वर्ल्ड वाइड। तो बच्चों, पूरी दुनिया में करीब 1000 endangered animal species हैं। Balance in the ecosystem and nature. Carbon dioxide gas, which is released by humans and animals, is taken in by plants. Plants convert carbon dioxide into food and give oxygen back to us. When plants and animals die, bacteria decompose their bodies and return all things that they had taken to the nature. In this way, balance in nature is maintained. तो बच्चों, इकोसिस्टम एंड नेचर में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि प्लांट्स ले लेते हैं, वो उनका खाना होता है जिससे वो ऑक्सीजन बना के हमें प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही इकोसिस्टम में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा नेचर एंड इकोसिस्टम दोनों ही बैलेंस्ड रहेंगे। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. प्लांट्स, humans and animals cannot survive without each other. They depend on each other for their survival. The elimination of any one of them will affect the natural balance. Both living and non-living things are interdependent for maintaining the balance in nature. There are number of national parks and wildlife sanctuaries in many countries to protect animals and forests. In India, we have about 150 wildlife sanctuaries. The biggest of these
is Sundarbans in West Bengal. तो बच्चों, प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. किसी एक के भी एलिमिनेट हो जाने से दूसरे पे बहुत ज़्यादा असर होगा. इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखें, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. इंडिया में अबाउट 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिसमें से सबसे बड़ी है सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. सुंदरबंस नेशनल पार्क. बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें सुंदरबंस नेशनल पार्क की पिक्चर दी हुई है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.